Good morning, friends. Welcome to one more video of Trade with Edge. Let's start with some important news update. Focus again back to US tariff war. US has accused China of curbing the exports of rare earth magnets and other key minerals. US will be doubling the tariff on steel and aluminum to 50% from 25%. Now, again, this war is getting escalated. A Niva Bupa block deal of 7.2% stake is going to happen at 11% discount. Pro prices 82 rupees. Auto sales started started pouring in. M&M 17% growth for May month. TVS Motor 14.5% and Tata Motor 8.6% degrowth. RBI policy going to be declared on 6 June. That's Friday. And Street expect 25 bips, one more rate cut. So that's why PSU banks are in focus. Last 2 days we have seen some good recovery in PSU bank. IRDA 20% of outstanding says freed up today from 6 months lock-in. We might see some pressure on the counter because now this is just a lock-in getting over. It doesn't mean that they are going to sell. But yes, we have seen in the past like what happened in Ola or other stocks. Whenever such lock-in gets over, some selling pressure we might see in the stock. Olectra Greentech 5150 e-bus order reinstated with new delivery schedule. This order was cancelled earlier. Now this getting reinstated with change in delivery schedule. So would be positive for the stocks. Apollo Hospital profit up 59%, revenues up 13% and margin at 13.7, 12.96. Some good numbers declared by Apollo Hospital. Inox Wind revenue up 136%, net profit up 3% and margin at 8.2, 15.7. Nykaa profit up 1. Nykaa profit up 193%, revenues up 24%. Vodafone Idea net loss narrows to 7166, but still it's a loss. Revenues up 3.8. A company also approved fundraising worth 20,000 crore. Ahluwalia Contractors profit down 58%, revenues up 4.5%. Jamna Auto revenues down 0.4%, net profit down 8.1%, margin at 13. So these were some important news update. Now let's see tariff का क्या impact आ रहा है on markets. So Dow future is down 0.3%. European markets were mixed, positive, negative, but Nikkei is down 1.5%. Hang Seng down 2%. Taiwan down 1.5%. So we are seeing some impact in Asian markets. Gift Nifty is still flat. No major change in Gift Nifty. Now let's see OI impact, like what's happening on OI fronts. Friday we have seen some decent call writing at 24,800 and 24 900 25,000 range. Some अच्छा call writing हुआ है. We can see call writing is also higher, so indicating some pressure from upside. Upside पे एक range बनते जा रहा है. एंड अगर हाईएस्ट कॉल ओआई की बात करें वी कैन सी 24,800 25,000 दीज टू लेवल्स आर important resistance level and support we are seeing at 24,400 and 24,500 again. Like डेटा के हिसाब से तो एक रेंज डेवलप होते हुए दिख रहा है. दिस ऑल्सो लाइक वी हैव सीन पास्ट फ्यू मार्केट एक रेंज में ही ट्रेड कर रहा है. अगेन बेस्ड ऑन द डेटा रेंज इज गेटिंग डेवलप. So chart पे interesting, Nifty same 20 period SMA support which is now at 24,670. जब तक ये level sustained है, any dip below this level would negative because might see decent dip towards 24,200 24. So आज का important levels रहेगा. Strong above level is 24,812. जिसके ऊपर 24,930 एंड 25,067 टारगेट देख सकते हैं. एंड वीक बिलो लेवल रहेगा 24,689, 24,600 एंड 25,112 के लेवल्स देखने मिल सकते. बट अगेंस्ट दैट बैंक निफ्टी का चार्ट इफ वी सी लास्ट 2 days में एक अच्छा स्ट्रेंथ देखने मिला है, डेफिनेटली बिकॉज ऑफ पीएसयू बैंक्स. एंड वी
सस्टेन दिस सपोर्ट फॉर ऑलमोस्ट 15 डेज, सो 15 दिन से ये सपोर्ट टेस्ट करके बाउंस हो रहे हैं, एंड नाउ वी आर एट अपर एंड. Any breakout above this level, that is 50 56 900 55 900 लेवल, ये रेंज के ऊपर एक अच्छा अपमूव देखने मिल सकता है. नाउ रीजन इज, इफ यू सी हियर, लास्ट 5 डेज से सेम लेवल पे मार्केट रेजिस्टेंस ले रहा है. एनी क्रॉसिंग ऑफ दिस माइट ट्रिगर अ शॉर्ट कवरिंग. तो यस, बैंक निफ्टी अब ऑब्वियसली इवेंट भी है, आरबीआई पॉलिसी इज देयर, बिकॉज ऑफ इवेंट ऑल्सो वी हीटिंग अप इन द टैक्स. तो यस, अगर टैक्स देखना है, बैंक निफ्टी देखो. बैंक निफ्टी में पीएसयू बैंक्स आर द पॉकेट ऑफ द स्ट्रेंथ. तो आज इंट्राडे लेवल की अगर मैं बात करूं, सो दिस इज अ वीकली चार्ट. आप देखो वीकली चार्ट पे लास्ट 3 वीक से वी आर सीइंग एनी डिप गेटिंग bought into, and this was a fake breakdown. एक फेक ब्रेकडाउन आया था, बट विच वॉज nullified with this gap up, and now we are back to the old high. ये एक ब्रेकआउट लेवल था बिफोर दिस टैरिफ रिलेटेड वॉर का जो फॉल था, के पहले का ब्रेकआउट, वो लेवल ऑलरेडी क्रॉस कर चुके हैं, एंड दिस इज द नेक्स्ट लेवल. यहाँ पर एक फ्लैग बनते हुए दिख रहा है, बट यस, बीच में स्कैर्स डेफिनेटली आ रही है बिकॉज ऑफ दिस टिप्स. तो यस, दिस चार्ट इज स्ट्रेंथ काफ़ी है बैंक निफ्टी में, ये फोकस आप कर सकते हैं. इंटरडे लेवल्स की बात करें, स्ट्रॉन्ग अबो लेवल 55,818, एज यू कैन सी लास्ट 4-5 डेज हाई भी यहीं पे है, तो इसके ऊपर एक रैली देखने मिल सकता है टूवर्ड्स 56,091 एंड 56,070. वीक बिलो लेवल रहेगा 55,367, 55,054, अब आपने देखा निफ्टी में ओआई डेटा फ्रंट पे कॉल राइटिंग ज़्यादा है, इज डेफिनेटली इंडिकेटिंग माइल्ड बेरिश. बट ओआई डेटा कैसा है, व्हेन मार्केट ओपन, आपको लाइव ओआई डेटा देखना होगा, दैट वेदर दैट इज सप्लीमेंटिंग द पोजिशनल व्यू और नॉट. तो जब तक दोनों डेटा मैच नहीं होते, प्रीवियस डे का डेटा एंड इंट्रा डेटा, इट डजंट सिग्निफाई मच. यस, लेवल्स वर्क करेंगी, बट इंट्रा डे न्यूज के हिसाब से डेटा माइट चेंज. आपको ये दो चीजें ध्यान में रखनी है, दोनों जब सेम डायरेक्शन में हमें इंडिकेट करे, दैट इज द गुड लेवल टू टेक. मिड कैप इंडेक्स अब ऑब्वियसली अपर बॉलिंजर बैंड पे तो है, बट एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हमें देखने मिला है. ये स्विंग हाई भी हमने क्रॉस किया है. स्टॉक स्पेसिफिक काफी स्ट्रेंथ है मिड कैप इंडेक्स में. तो यस, एज आई एम टेलिंग सिंस लास्ट मैनी, फोकस ऑन मिड कैप स्टॉक्स, वहां पे एक अच्छा ट्रैक्शन दिख. अब नाउ दिस इज द सेक्टर रोटेशन विच वी डिस्कस. सो लास्ट वीक के विनर्स थे डेफिनेटली डिफेंस एंड पीएसयू बैंक्स. तो डिफेंस अब ऑलरेडी चल चुका है, आफ्टर मजगांव रिजल्ट थोड़ा डिप भी देखने मिला, रिकवरी भी आया काफी स्टॉक्स में. जीआरएससी, एलडीआर स्टिल परफॉर्मिंग बिकॉज उनके नंबर्स बेटर थे. नाउ यस, ये सेक्टर तो डेफिनेटली है, बट एक नया सेक्टर जो इमर्ज हो रहा है, दैट इज पीएसयू बैंक. सो हमने यूनियन बैंक, कैनरा बैंक, स्टेट बैंक, यस स्पेसिफिक स्टेट बैंक में अपार्ट फ्रॉम द अपमूव एक लॉन्ग बिल्टअप भी देखने मिला, फ्यूचर में वहाँ पोजीशन बन रहा है. सो यस, एक पीएसयू सेक्टर पर हम लोग फोकस करेंगे. अदरवाइज ऑल अदर सेक्टर्स वर ऑलमोस्ट लेगार्ड एंटायर वीक, राइट. सो इमर्जिंग सेक्टर्स में डिफेंस ऑलरेडी चल चुका है, तो यस, नेक्स्ट फोकस वुड बी पीएसयू बैंक. अब कुछ स्टॉक्स जो मेरे रडार पे आ रहे हैं, अगर जिस बात करूँ, वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट जहाँ पे आया है, स्टायरेनिक्स परफॉर्मेंस कैन सी हियर एक अच्छा रेंज ब्रेकआउट देखने मिला है. सेकंड स्टॉक इज वोकार्ड, ट्राइंगल ब्रेकआउट है यहाँ पे, सिमेट्रिक ट्राइंगल एक बन रहा है जिसका एक ब्रेकआउट आया है. एंड थर्ड स्टॉक इज साई लाइफ. नाउ दिस इज द आईपीओ ब्रेकआउट चार्ट. जस्ट लुक एट द कंसोलिडेशन. कंसोलिडेशन रेंज ऑलमोस्ट 180 रुपीज का है, and any breakout above 790.03 range के ऊपर, this could be a good stock. That was for today guys. आप बटरफ्लाई स्ट्रैटेजी अगर आपको देखना है, just look at the link in my description box. Every Saturday we conduct
फ्री वेबिनार्स ऑन ओआई डेटा रीडिंग, वो आप अटेंड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में link है, आप उसे। एंड एक और गुड न्यूज़, सून आई एम गोइंग टू मास्टर मोमेंटम स्ट्रैटेजी। ये जो स्ट्रैटेजी है, जहाँ पे हम लोग मोमेंटम पे फोकस करेंगे एंड हाई रिस्क रिवॉर्ड ट्रेड्स, जैसे 1:5, 1:7। अब रिसेंटली अगर IFCI और ऐसे स्टॉक देखे जहाँ ब्रेकआउट के बाद एक ऑलमोस्ट 1:8 RR का ट्रेड मिला था। नाउ ये कैसे कैप्चर कर सकते हो, उसके लिए इट्स नॉट दैट इजी, उसके लिए एक डिफरेंट माइंडसेट, डिफरेंट प्रोसेस क्रिएट करना पड़ता है। इवन लो सक्सेस रेट पे हम लोग काम करें, स्टिल वी कैन मेक अ गुड मनी। वो जो माइंडसेट है, वो जो प्रोसेस है, वो जो मेथड है, फुल रूल ड्रिवन मेथड, वो मैं कवर करूंगा अलॉन्ग विद द लाइव सेशन, राइट। तो मैंने एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है और अर्ली एक्सेस टू द मोमेंटम कोर्स, आप उसमें डिटेल्स फिल कीजिए। बाकी सारे डिटेल्स में आप आई गिव यू इन द नेक्स्ट video. Thank you guys, thank you so much.